Hello everybody, Assalamu alaikum. I am your trainer today. I am Dr. Muhammad Imran Rashid from UVAS. Today we will cover our module different aspects of informatics. In the informatics, we will see how Microsoft Office, this is the user-friendly tool, how we can get maximum benefits for manuscript writing in the form of article, in the form of thesis, or any scientific publication. You may get advantage to write in this software. Whenever you see Microsoft Office, when you heard this one is a very simple thing that has come across in the world at Microsoft Office, a very light term, and you are going to train this kind of software which is already known to the world and you know already in your academics Microsoft Office. But when I got training in France of Microsoft Office, different aspects in thesis writing and manuscript writing, it has many aspects uncovered. Most of the students, when I see here in MPhil and PhD studies, they have many mistakes in their manuscript writing. Then I started training last year to train our postgraduate students about how to train, create a template for writing a manuscript. It's very beneficial. If you go through, if you are with me with this module, I will teach you different things. I know you know the different aspects of this Microsoft Office, but for manuscript writing or thesis, different steps are needed to adopt, to carry out, to have a presentable form of thesis or articles. Today we will see how to start with this MS Word, and while starting this MS Word, you will see how you will do your default setting of this MS Word. What are default settings? How to create? This one is very much problematic. I have seen students, they don't keep one document of MS Word because they have different issues in creating a one document, because they have different issues while setting up different documents. They don't want to create one document. Actually, to create a one document is user friendly. Why the students don't create one document? They come across different problems. One is that they don't create a landscape page in between portrait pages. Then how we will see, this is actually, this workshop is problem oriented. How I have observed the students, they have problem in creating one document. One problem, they don't keep landscape page in between portrait pages. Then how we define the headings of these documents, because why they are needed, to make the different levels of these headings. Then we, from these levels, we will create our table of contents. Is very important. I have observed that students create manually table of contents. They forget to update the pages. Actually, when you keep your one document, your table of contents updated automatically. We will see today how the document keep up the pages automatically when you close it. Then we will see how to update the pages of the figures and tables in the document, and then we try to keep the captions of these tables and figures, how we will write about it, and how we create these headings and of the figures and equations and of tables separately. Actually, students don't want to keep one document of one thesis. They create many documents because of these problems of sometimes they feel that they don't give them different page numbers to this document. We will see how we can manage this document with different pages and with different header and footers. And now let's start with our first module. We will see different things. First, about I am at the start of this session, I want to convey my message. I am not the expert of Microsoft Office, and I am not the representative of the Microsoft Office. What I have learned through my scientific studies, creating documents, and I faced different problems of the students. Then I created my with my experience.
this presentation to how to guide the students to make or keep the Microsoft Office, your thesis, your publication in one document. So Microsoft Office, in somehow we can say innovative and breakthrough in software, which is user friendly and which can help the researchers to write meaningfully in an easy way. What's our plan today? We will see how some of the things are very basic. We will start from the basic. I know you have a grasp of this software, but there are some issues I have told you in the beginning. So that's why I am starting from the very beginning, from text formatting, then how to manage your or insert your images or figures and tables in this document, and how to make a landscape page between portrait pages and table of contents of figures, tables, and we will do our exercise on a manuscript and try to create a manuscript template for others who can manage. Template means you can create a model document for uh, for your university, for your institutes. What are the basic steps from we start? These things you already know, I know, but in this issue just I touch 1 to 2 points. How just you already know, if you open a document, for example, this one, you come across different these icons, and you under these each icon there are windows, and just to introduce what are different windows, and some of them we will touch which are useful in creating your documents. We don't cover all because for our this matter they are, I don't think so they are useful, but which are useful we will cover it, and how we do our exercise practically on it. And under the home you will see different windows, and in this window there are different things. First of all, when you open a blank document, Microsoft Office, i uh, I request you to open your two documents. First, you have already created, and second, open a blank document so that we can do our exercise on blank document and also on the document you have already in your hand. First of all, in a blank document, while starting your writing, I just advise you to make default setting. What does it mean? Before starting the document, if you set the default setting, then it will be very helpful to manage your document. Otherwise, you will face different issues and problems. What does it mean, default setting? For example, in this home window, if you click on this little arrow, small arrow, there will be a panel will open. You will see different font sizes or fonts and font types. If you are going to write on Times New Roman, just select on Times New Roman, and then it's regular. And 12 font size, this one is standard. Then you do set as default. For this document only, on other documents you can set it, or we are doing on this document, then preferably we can set it. Then the other things, this one is this Times New Roman font and 12 font size has been set. Then you go for a line spacing and other justification. Just like alignment, you have to justify it first, and then line spacing double if requirement of the document is double, or 1.5. Okay, then you can set as a default for this document. Okay, then this default setting has been done. You have seen this line spacing too, and justified paragraph, this one is set for you. Then other thing what will we do while starting this document, these, and the language, if you have set the language for a grammar, it is better. Here is the English US, or you can set English UK. There are different things. If you are creating your document according to US English style or UK English style, then set it first, or in French. If you set it, then you will be able to get grammatical guidelines.
Otherwise you will see different things which are not which will be harming you and teasing you. If for example you going to set English US, set it as a default, and yes, based on a normal template, yes, okay. Then here you will see, if you start, there will be different things you will come across in the basic steps. These things you already know how to create and save a new document. In saving the document, you know, saving the document, but there is one thing, very little small thing. For example, if you save this document, do save as, and there are different formats of the document, docs or word doc. This is the universal, I think is openable in all computers. If you save it in doc in version 97 to 2003, it will be easy. Then this document you can open it anywhere. Otherwise you will face different problems in opening this document. And of course the path you have to save it. These are the default settings. While starting, first very important thing, open this on this tab, put on this tab. Why? What is the importance of this tab? I will tell you. This is the format tab. It is very important. If you put on this, now it is yellowish, it means that it has been on. It has the advantage, I will tell you. For example, here is the document. Students are creating very beautifully the document, but it is technically wrong. Here is the document before us. If you see it, it has very stylish phrase, I think writing, very stylishly placed, but it has many problems. It is not technically correct. How? If you put on this tab on, you will see many dots. What does it mean? You have put extra spaces on it. One dot, it is not printable, these dots, but it will guide you. You are creating a wrong document. Here you see, for giving a style to the word, the student is putting spaces. It is wrong. Within the word there is no space, and after the word there is space. It shows that students showing style, but it is creating a wrong document. Other thing, one thing is that, but is that it has put extra enters, and it has inserted extra enters, so it is showing that here paragraph ends. You will see different errors in it. It is not line spacing, justification is wrong. The students are trying to present betterly, but it is technically wrong. There are different things we will see, but they do. Now next step, while uh, put on your tab, it is a basic step. Other things I think you know, save the document, and saving document, just remind to save it doc file in 97 to 2003. So that's why you can open this document anywhere. You might not have a problem in opening this document, because in some computers you might have older version of the word. Next, we what we have, don't ignore this. What does it when you have default setting of the language and different things? Spelling, it will guide you these documents. There are spelling mistakes. Don't ignore these wavy lines. It might be on red, green or blue. These wavy lines guide you. There is a problem in the spelling, or it has not in its memory. If you have a red wavy line, red shows that there is a spelling mistake. You should check or right click it to have a correct word. Then it will be easy to put on. Don't ignore these lines, wavy lines. Rather, it is the grammatical mistake or spelling mistake, or don't have in its memory in this computer. It might give within the sentence. And these wavy lines,
will guide you whether you correct your spelling or in your grammar. Then grammatical mistakes, you are using plural words, then you are putting a wrong verb, then these might guide you to correct your sentences. If there is a scientific word, it will also give the wavy lines because it is not in its memory. Scientific word just check on the Google to whether it is correct or not. Other things we will see in it after spelling mistakes, then you will see its format text. We have seen this window and we have set the default setting of this for paragraph. We will see later this what is the use of this pen of styles. It's very important in managing the document. You can change the margins of this document. It's very easy. If you don't follow these margins, you can set these margins. You can we have this overview of this pen. Then we will see what changes we can do. We can use this page break. We will use it header and footer, page number, and these page layout. There are different these icons. Under these icons, there is a small windows. We will use in creating the document. What other things are these things are very preliminary. I have told you the format tab. What we have seen is put on always put on this tab, which will guide you in spelling mistakes. If you have extra spaces, always put or click the tab button to give the paragraph shape. It will guide you that if you have put extra enters there. You can align the text whether it's left to center, right. These are very easy things you might know. Page layout. In the page layout, we will see it's a very important. If you go in the breaks, we will use it for creating the whether you create a portrait or landscape for the orientation. We will see how this can be achieved. Under the reference tab, we will use the table of contents, what we have talked about it, and how we'll insert the captions. We will use automatic system to insert the captions. Don't manually insert the captions of the figures that are not manageable easily. We will use this review tab. If you are sending the document to another person, he will check your document by clicking on this new comments to put on these track changes. Then you will see your correction. If you want to correct your document from another researcher or your supervisor, then it will he will or she will use these track changes to put on the changes on the right and suggestions to make changes in the document. In the presentation, I will give you some keys which shortly you can use. Control C, Control X, Control V. These are you can memorize some of the if you are using. In the module, in the coming module, first the problem what we will see. First problem. First, if we want to create a document which has portrait pages and in between portrait pages we want a landscape page. This is the first exercise we will do. This one is, if you see in the page layout, in the orientation, this is the portrait. For the landscape, if your figure is large enough or you have a table large enough, you want your table or figure in a landscape. Students often keep the figures or tables in a separate document. Why? Because they cannot manage a landscape page in between the portrait pages. First, we create a landscape page in between the portrait page. First, this one is the portrait page. Put on your format tab. Then, in the page layout window,
see the breaks and go on the or insert a section break here. If you guide you another again, you will see a page layout. Then within the page layout there are breaks, and go on. If you click on the small arrow of these breaks, then you will go on this next page. In this way you go directly on next page. You will see your tab, this format tab will show that there is a section break here. It's not printable, but in the document we can say there is a section break. If you come here and you are in the second page, here you also put the section break again. Why? Because you have the now three pages, and two pages are portrait, and the second one we want to make it landscape. And here you go on orientation, then select landscape. Here is the landscape. Here you can see is the landscape page in between portrait pages. Now it's I think easy. I repeat it once again. If you want to create a landscape page in between portrait pages, you have to give two section breaks and go on a middle page or the page you want to make it landscape. Then change the orientation of this page, you will get the landscape page. Then here you can manage this one, this page. Next we will see how to create table of contents. This is very important if you want to manage the, for example, I will show you a document. We have some exercises here. This one, table of contents. At the start of the chapter or at the start of the thesis or at the start of your manuscript, there are table of contents. Students often make it manually. They put their pages at the end, their headings. But whenever there are changing in the documents, these at the end, students often make changes in the pages. Manually you cannot manage because you will come across different page numbers in your documents. At the end there will be mess, and students are very fatigued at the end of the thesis or the manuscripts. This one is the forgettable part, and it is the user friendly. You can manage it automatically. If we I can change the page number, here is the change number changes automatically. For example, I show you first how this is the idea, or this one is the practical. For example, this one is the introduction as page 6. I will go on the introduction. On the page 6, if you put here any page break to go on the, now this introduction is on the page 7, and here you will see your table of contents. If you create it manually, it will be on page 6. You have to change it manually when you get print of it, and put your table of contents in front of you, and you count the headings. And here you see how this automatically change. Click on right click, edit update field, update entire table. You will see here this goes to the page 7 automatically. You don't have to go through all the document to set the pages. This one is the exercise. We will do it how we can put a table of contents. This one is the exercise, how we perform it. For example, if you have a document, I create one document. For example, if you are doing after me to follow the instructions and create a document, then it will be easy to learn for your uh, practical experience. You can do it manually. If you are creating a document, for example, if I get copy paste on some material,
Control C. Then you have a new document. If you just put uh, section break to come on the other page, here paste it, you have a text. For example, here in the text, I here select or insert the headings. For example, this one is heading A, for example. I think then here I want another heading. Within the chapter, if you go to the next page, use page break, which is in the insert menu. If you are going to other chapter, use page break. It's the advice from, it's the protocol. If you keep your one document aside, for example, if I want to create another section of this chapter, for example, I make this heading, for example, then how we make the levels of this heading. This one is another thing. But does it mean levels? For example, if you have different chapters, within the chapter, there are main headings. They are kept at level 1. I show you. This home menu, within the home menu, there is the window panel open. You will see there are styles. There are heading 1, heading 2. Actually, these are for the definition or defining the headings. Actually, there are levels. If, for example, main heading is the level 1, and subheading is level 2, subheading is level 3, and if you define these levels, then it will be easy to manage your document or table of contents. Now start with this. Select this heading, select this heading 1, then it will be heading 1. This one is the level 2. If you define it heading 2, it will be heading 2. What are the advantages? We will see. If you go at page 1, you write here table of contents, and here go on references, you select table of contents. Here are table of contents. If you can take from these templates already built in this Microsoft Office, or go into the, if you can customize it. These are the levels. You can give many levels, 4, 5, 6. If you have many levels in your documents, you can define the levels. If you have defined the levels, then you give OK. They are automatically updated the pages and headings. For example, 2 headings have been defined. And if you go on another page and give it a heading or defining the heading, go on another page. If you define it another heading, for example, heading 1, for example, you update here, just click it, it will be grayish. Right click it, update field, update entire table. You will see automatically this heading will be, if you have defined the level. Here we defined the level 1. This one is the level 1, this one is the level 2. If you have defined another heading, for example, in this chapter, you defined this one is level 3, heading 3. Go and update the table. Update field, update entire table. OK. Now you have seen these levels have been defined according to their pages where they are in the
text. This is very user friendly and easy to manage your headings. Next, what we'll do, you have problem here that these headings have different colors and different fonts. You can adjust them, modify them. How? Go on the styles in the home tab, in the home pane. You go on small arrow, click it. There will be small window opens, and within that you will see there are headings. If you go on heading 1, there is small arrow. If you click it, here is you can modify it. Modify it, there is a pane will open. You will see you can change the font. For example, font size 12, you need Times New Roman, and text color automatic black. You can go at the format tab to give it the number. If you define your level first heading 1, if you select it, okay, then you can define it. You have seen that this heading has been changed to level 1 and what you have defined it. I again repeat it to memorize it. Go on this small arrow in your home pane. You will see a small window will open, and within the window click on this small arrow and modify tab. You will see a small window while you can where you can modify your heading. You can change the font size, for example 12, 14, what you need it. It will show you within the pane how it will look like. Heading size, font, or you can change the number. If you have defined the number 1 or Roman 1 or ABC, what you have to do, what you need it. So likewise it can be changed. Here we can insert numbering, for example 1, you can change it. Okay, then you will see this automatically, this one is the heading 1. But another advantage of creating the table of contents automatically is that you can go directly on that page where this heading is. For example, if this one is the heading 1, click on control, you will see the hand change of the search to into the hand. Right click it, or just click it, you will go directly on this heading. It will become automatically 2 when you change it, the numbering of these headings. What is not showing the level here. Just update this heading, you will see the change of these levels automatically, the pages, if you have changed any pages. Another thing we will see, this one is TOC, table of contents. This defining the headings. You can create table of contents and manage the table of contents while you are defining the headings. If you don't define the headings, then it's not possible to create a table of contents and manage table of contents. For managing the table of contents or creating a table of contents, you have to define the headings and heading levels. So that's why we created here. If we can go on questions or something like that. Can you do English? इसको इस तरह भी रिपीट किया जा सकता है, अगर किसी को कोई मसला है, कोई इसको फॉलो नहीं कर सकता, लास्ट में हमारा क्वेश्चंस है, तो
वो भी अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। बाकी आरपी वालों का शुक्रिया है कि वो इस फोरम पे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा हम इस सेशन को फिर भी रिपीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो उनके लिए एक सहूलत हो जाएगी कि डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले बताया, आपको पता है उस चीज़ का। मुझे भी अंदाज़ा है कि ये लोगों से सही सुना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये इसकी ट्रेनिंग क्या होती है। हमारा ये बड़ा इशू है कि हम कहते हैं जी कि बहुत हाईवी सॉफ्टवेयर सीखें तो वो जो है बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन बंदा लर्निंग उसी वक्त करता है जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और ये वो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स इसमें फंसा होता है और एक डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट करता। उसमें कुछ इश्यूज हैं, मैं रिपीट करता हूँ। उसमें इशू क्या है, एक जब लैंडस्केप पेज बनाना पड़ जाता है उसको दो पोर्ट्रेट में, डॉक्यूमेंट आपका पोर्ट्रेट में है। अगर आप लैंडस्केप पेज बनाते हैं तो आप से मैनेज ही नहीं होता। वो मैंने बताया है कि आप सेक्शन ब्रेक्स दें और उन सेक्शन ब्रेक्स के दरमियान में उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लें तो आपका वो लैंडस्केप पेज बन जाए। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा इश्यूज ये है कि हम एक डॉक्यूमेंट नहीं रखते। उसकी वजह ये है कि हम अभी देखते हैं कि उनके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स की डिफरेंट हेडिंग्स, हेडर एंड फुटर हैं, और इन डिफरेंट के पेजेस नंबर है। तो वो उसकी वजह से हम कहते हैं प्रॉब्लम आता है कि हम एक डॉक्यूमेंट नहीं बना पाते। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना यूजर फ्रेंडली है। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आप किसी को भेजेंगे चेक करने के लिए तो ये उसके लिए सरदर्दी बन जाएगी कि उसको इतने डॉक्यूमेंट्स चेक करना और उसको समझना और भेजना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने जब भी किसी रिसर्चर को या किसी जब थीसिस को जमा कराना है या आपने पब्लिकेशंस के लिए आर्टिकल भेजना है तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट भेजना है। वो मैंने बताया इसी तरह मैनेज होगा। अगर आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आपके दरकार हैं, जो कि लाजमी दरकार है, कुछ आर्टिकल साइंटिफिक आर्टिकल्स मांगते हैं, अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देंगे तो वो बहुत इजी है कि उसको वो समझना। आज प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जब आप साइंटिफिक प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने पड़ते हैं, मतलब थीसिस तो ऐसा है जिसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है स्टूडेंट्स मैनुअली बना रहा होता है। उसमें मैनुअल बनाने में मसला मैंने बताया है कि टेबल्स आप अपडेट नहीं रहता। स्टूडेंट्स इतना या रिसर्चर कोई भी इतना थका हुआ होता है जब वो पेजेस चेक करवा के उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है, डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट टेक्स्ट आ जाता है, तो एंड पर वो पेज नंबर अपडेट करना होता है और वो पेज अपडेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बड़ा बैड इमेज जाता है कि ये फलां पेज पे फलां आपका सेक्शन है, फलां चैप्टर है। तो शुरू में ही इमेज खराब हो गया तो आपका जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म, वो इमेज खराब होगा क्योंकि आप उस डॉक्यूमेंट को मैनेज नहीं कर पाते। तो ये मैंने ये भी बताया है कि ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करें और हेडिंग्स को डिफाइन करें। जब आप हेडिंग्स को डिफाइन कर लेते हैं तो तभी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर पाते हैं और उनके पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, जिस तरह ये हमने एक्सरसाइज की। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं कि अब हमने टेबल ऑफ फिगर्स फॉर एग्जांपल बनानी है। ये भी एक होता है जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आप इसी तरह मैन्युस्क्रिप्ट्स में या आपकी थीसिस में लिस्ट ऑफ टेबल्स या लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ इक्वेशंस जो मैथमेटिक्स के हैं या फिजिक्स के हैं या जो मैनेजमेंट्स के हैं उनके डिफरेंट इक्वेशंस हैं, उसको भी वो डिफरेंट पेजेस में लिखते हैं, उनकी कैप्शंस लिखते हैं और उस तरह किस तरह मैनेज करते हैं। आप नेक्स्ट जाएं, उसको पेज ब्रेक दें जी। जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ आप टेबल ऑफ फॉर एग्जांपल ये आप क्रिएट कर सकते हैं जब आप ये सेक्शन में जाएं, ये रेफरेंसेस में, वहां पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर होगा। यहाँ पर आप टेबल ऑफ फिगर्स या टेबल ऑफ यानी टेबल्स या टेबल ऑफ या लिस्ट कह लें आप, लिस्ट ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर बना सकते हैं। ये बेसिकली डुप्लीकेट हो रहा है, इसको हम
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। रेफरेंसेस में जाएंगे और फर्स्ट जब आप यहाँ पर क्रिएट कर लें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो यहाँ पर आप उसके या फिगर्स दरकार है या टेबल्स दरकार है या इक्वेशंस, तो यहाँ पर यहाँ चूंकि अभी अब आपने कोई डिफाइन नहीं किया, जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तो ये टेबल क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कोई फिगर्स लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये फिगर एक फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, तो वो जो है आप ये फिगर है, इसको आप बेशक अलाइन कर लें मिडल में, और इसकी आप इस पे कैप्शन जब देनी है तो वो आपने मैनुअल नहीं देनी। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट ऑफ ये फिगर्स क्रिएट हो तो वो आपने कैप्शन इसी रेफरेंसेस में जाना है, इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया ये फिगर 1 है, उसने सेंस किया ये फिगर 1 है। जिस तरह आप डालते जाएंगे ये इसी तरह चलता जाएगा। अगर आप फिगर्स की लेबल करना चाह रहे हैं, टेबल की करेंगे, इक्वेशन की करेंगे, इनकी लेवल ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पर आप उसका फिगर लिख लें, फॉर एग्जांपल कोई फिगर है, तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ये फिगर 1 आ गया। तो शुरू में जब आप जाएंगे तो इसको राइट क्लिक करें और अपडेट फीड कर दें, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि ये पेज 2 पर है। तो इसी तरह आप इसको अपडेट करते जाएं। इसी तरह टेबल ऑफ फिगर्स को, टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम अलग इस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने ये किया है, और मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा सा इस चीज़ की एक्सरसाइज हुई है, ये आपको दिखाते हैं जी। ये जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये अपडेटेड है। तो ये जिस तरह ये छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, वो लेवल्स हैं, ये देखें लेवल्स हैं, ये सारे हम डिफाइन कर सकते हैं। जो ही हम अपनी हेडिंग को डिफाइन करेंगे, जैसे ये लिस्ट ऑफ फिगर्स है, ये इसको क्लिक करें आप फर्स्ट फिगर पे, जैसे ये मैंने कैप्शन लिखा है, तो ये जैसे फिगर है इसी तरह ये फिगर्स में डालता गया और उसकी कैप्शन लिखता गया। ऑटोमेटिक करना है आपने, मैनुअली नहीं करना। अगर मैनुअली करेंगे तो वो फिर आपसे मैनेज नहीं होगा डॉक्यूमेंट, और एंड पर क्या होगा कि आप पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट लेंगे और उसकी हेडिंग्स को अपडेट करेंगे और उसमें भी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यूजर फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि आप इन चीजों को ऑटोमेटिकली मैनेज करें कि आपकी वो दर्द सर नहीं बने। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप उसको अपडेट कर सकते हैं जैसे ये आपको बताया। इसी तरह आप ये फिगर 4 है, ठीक है जी, और इसी तरह ये डिफरेंट फिगर्स हैं वो हमने इसको किए। शुरू में जाते हैं, आपको दिखाते हैं ये जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स है और लिस्ट ऑफ फिगर्स है और इसी तरह लिस्ट ऑफ टेबल्स है। जैसे 26 पेज पर ये आपका कंट्रोल को क्लिक करें, प्रेस करें और एक दफा क्लिक करें तो आप उस टेबल पे चले जाएंगे, उस पेज नंबर पे। तो ये आपका जो है ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ फिगर्स और टेबल ऑफ फिगर्स यानी लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड लिस्ट ऑफ इक्वेशंस, ये आप मैनेज कर सकते हैं इन अ यूजर फ्रेंडली वे। ये तकरीबन हमारा जो मॉड्यूल इसमें हो गया है। लास्ट हम ये ट्राई करेंगे इसको, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर कोशिश करेंगे क्रिएट करने की। ये है जी हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर। ये भी वजह है कि हम चैप्टर्स को डिफरेंट हेडर या फुटर नहीं दे पाते और पेज नंबर हम मैनेज नहीं कर पाते, तो वो हमें बाज़ औक़ात पेज नंबर डिफरेंट पेजेस के शुरू के पेजेस में और चाहिए होते हैं, या आपको पेज नंबर नहीं चाहिए, आपने पेज नंबर कहीं और से स्टार्ट करना है। तो ये हम देखेंगे कि हेडर एंड फुटर और पेज नंबर से हम यूज़ करते हुए एक डॉक्यूमेंट्स में किस तरह यूज़ करेंगे और किस तरह इसको वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी या हमारा जो एम है वो ये है कि हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। ये सारी एक्सरसाइज का, अगर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, मैंने बताया कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर फ्रेंडली वे ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें
और उसके शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स हो, या उससे पहले आपने कोई अपना हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, शुरू में टाइटल पेजेस होते हैं 1 2 3, और उसके बाद वो उसको पेजेस नंबर देते हैं, नहीं देते रोमन देते हैं, और आप पेज नंबर बाद में शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल छठे या सातवें पेज पर, और आप चाहते हैं सातवें पेज पे 1 नंबर आए। तो ये डिफरेंट, जब आप चैप्टर्स बनाएंगे तभी आप इसको मैनेज करेंगे, और डिफरेंट चैप्टर्स बनाने के लिए आपको बताया है सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करें। अब मैं आपके सामने ये एक्सरसाइज करता हूँ जी, कि हेडर एंड फुटर और हमने पेज नंबर जो है वो किस तरह मैनेज करने हैं। एक चीज ध्यान में रख लें, जब आप डिफरेंट चैप्टर्स बनाएं तो हर चैप्टर को दूसरे से अलग करने के लिए सेक्शन ब्रेक दें। ये आपको मैंने बताया कि जब फॉर्मेट टैब ओपन करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये एक लाइन आपको नजर आएगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पेज ब्रेक। आपने यहाँ पर, या मैंने पेज ब्रेक यूज की है। विद इन द चैप्टर डिफरेंट पेजेस को अलग करने के लिए आप पेज ब्रेक दें। उसका फायदा ये होगा कि टेक्स्ट जो है वो ऊपर टेक्स्ट में शामिल नहीं होगा। बाज़ औक़ात आपसे फिगर मैनेज नहीं हो रही थी, कभी वो इधर हो जाती, कभी ये ऊपर चले जाती है, यानी पेज चेंज कर लेती है। जहाँ जो ही आप कोई लाइन खत्म करते हैं या सेंटेंस खत्म करते हैं, तो वो फिगर जो है वो गायब हो जाती हैं, वो कभी ऊपर चले जाती हैं। तो पेज ब्रेक देने से फायदा ये होगा कि वो फिगर उसी पेज पे रहेगी, या अगर टेबल रखना चाहते हैं तो टेबल उसी पेज पे रहेगा। तो पेज ब्रेक विद इन चैप्टर्स दें। अगर आपने चैप्टर्स को अलग करना है, फॉर एग्जांपल आपका एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, एक चैप्टर है मटेरियल्स मेथड का, एक चैप्टर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, एक चैप्टर है रिजल्ट्स का, एक चैप्टर है आपका डिस्कशन का, और एक चैप्टर है आपका रेफरेंसेस का, 6 7, फिर समरी भी आप लिखते हैं। तो हर चैप्टर्स के ऊपर आपने कोई हेडर रखना है। ये जैसे हेडर है लिटरेचर ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर एग्जांपल ये हेडर है। आप चाहते हैं कि वो हर पेज पे नजर आए, हर चैप्टर के ऊपर नजर आए। तो ये बताने के लिए कि थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है बाज यूनिवर्सिटीज की, तो वो, और फिर हम पेज नंबर को बाज 5 6 पेजेस को नंबर ही क्यों नहीं देते। तो वो हम देखेंगे कि इसमें किस तरह हम वो चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये यहाँ से ये 2 पेजेस टाइटल समझ लें, ये चैप्टर फॉर एग्जांपल, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें ये आपका टाइटल पेजेस है, ये चैप्टर फॉर एग्जांपल 1 है। इसको आपने सेक्शन ब्रेक दें ताकि वो चैप्टर अलहदा करना है, कुछ पेजेस पहले अलहदा करने हैं, यहाँ से ब्रेक्स में जाए और सेक्शन ब्रेक दें। तो ये आपका ऊपर वाला जो चैप्टर है अलहदा हो गया, जो टाइटल पेजेस और डिफरेंट चीजें, ये चैप्टर 1 आपका हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर 2 भी लिखा है, फॉर एग्जांपल इसको आप चैप्टर 2 बना लें, तो यहाँ पर आप सेक्शन ब्रेक दें, तो वो आपका चैप्टर 2 हो गया। अब आप हेडर और फुटर इसमें मैनेज करने हैं। ये फर्स्ट 2 पेजेस हैं, जिसको आप चाहते हैं कि कोई आपने पेज नंबर नहीं देना या रोमन देना है, पेज नंबर मैंने स्टार्ट करना है यहाँ से। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा एम है। और हेडर फुटर इसी पे आए, ये हेडर है, और फुटर में जैसे पेजेस हैं ये आप नीचे करते हैं, ये फुटर में आ जाती है, या कोई और चीज आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट 2 पेजेस को आप तो कोई हेडर फुटर नहीं देना, इस पे डबल क्लिक करें, ये जो उसका फ्रंट है या आप उसका हेड कह लें, तो जब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। आप इधर से देख सकते हैं कि हेडर एक्टिव हो गया, पहले वो एक्टिव नहीं था। अब ये देखें, पेज के दरमियान में डबल क्लिक करें तो वो जो आपका है हेडर एक्टिव नहीं रहा, यानी शेडो में चला गया। इसमें चूंकि आप डायरेक्ट चेंजिंग नहीं कर सकते, चेंजिंग उसी वक्त कर सकते हैं जब आप इस हेड में डबल क्लिक करेंगे तो वो ये ऑन हो जाएगा। आप एक तो रिक्वायरमेंट आप चाह रहे हैं तो पहले 2 पेजेस पे कोई हेडर ना आए और पेज नंबर रोमन हो, तो इसको आप खत्म कर लें, ठीक है जी। तो ये आपका हेडर खत्म हो जाएगा। देन अब ये गौर करें, ये जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं ये तकरीबन सारों में खत्म हो गया। अब हम इसको मैनेज करते हैं किस तरह। तो ये पेज नंबर हम चाह रहे हैं इसको जब फुटर
यानी ये जो बॉटम पर डबल क्लिक करेंगे ना, ये एक्टिव हो जाएगा। ये आप देखें पेजेस जो है ना ग्रे सिलेक्ट है, इसको राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आएगा फॉर्मेट पेज नंबर। आप इसको पेज नंबर को कहते हैं जी कंटिन्यूअस है, आप का पहला चैप्टर है तो कंटिन्यूअस ही होगा। इसको आप चाहते हैं कि रोमन करना है तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट एट 1 कर लें तो ओके कर लेंगे ना, तो ये देखें आपका पहला पेज जो है वो रोमन 1 हो गया, दूसरा पेज रोमन 2 हो गया, और उसके ऊपर कोई हेडर नहीं है। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं जो आपका पहला चैप्टर है, इस पे चाहते हैं कि आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का हेडर आए। और फॉर एग्जांपल आपका ये जो चैप्टर 1 है ये है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये आपका हेडर है जी। और इसको आपने एक चीज बड़ी, जो बच्चे समझ नहीं आते बात फंसे होते हैं, ये लिंक टू प्रीवियस खत्म करना है। अगर ये आपने खत्म नहीं ना किया तो पिछले वाले में भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ जाएगा। आप इसको ऑफ कर दें, लिंक टू प्रीव्यू प्रीवियस, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस से लिंक नहीं हुआ। प्रीवियस चूंकि हमने रखा है कोई हेडर नहीं, तो ये आपको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आपने अनसेलेक्ट कर लिया तो आपका हेडर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ गया। अभी आप देखते हैं, आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये भी आ गया जब हमने दोबारा उसको कर लिया। ये जब हमने इसको किया था तो ये हमने लिंक टू प्रीवियस कर दें। तो अब आप देखें कि पहले 2 पेजेस में रिव्यू ऑफ लिटरेचर आया नहीं आया, क्योंकि आपने लिंक टू प्रीवियस, उसमें आप कोई हेडर नहीं रखना चाहते, आपकी मर्जी है कोई हेडर और रखना है तो आप कोई और रख सकते हैं। यहाँ पर हेडर फॉर एग्जांपल आप रखना चाहते हैं टाइटल पेजेस, टाइटल पेजेस, तो ये आपका फर्स्ट हेडर आ जाएगा टाइटल पेजेस। ये देखें टाइटल पेजेस, और आपने उसको टाइटल पेजेस को रोमन पेज नंबर दिया होगा फर्स्ट 2 पेजेस को। और आपका चैप्टर 1 है फॉर एग्जांपल रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखिए चैप्टर 1 हमने रखा था, तो इसका देखते हैं पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्यों 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इसकी फॉर्मेटिंग की है। इसके फुटर पे जाएं, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट पेज नंबर्स। अब हम चाह रहे हैं कि इस पेज से यानी इस चैप्टर से पेज नंबर 1 आ जाए, और वो जो रूटीन के नंबर्स हैं 1 2 3 इंग्लिश के वही आए। तो आप करेंगे क्या, स्टार्ट एट 1, क्योंकि ये एक अलग आपका चैप्टर है और ये आपने सिलेक्ट किया हो 1 2 3, ओके करें तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, शुरू के पेजेस पे अगर जाए, ये देखिएगा वेब काम नहीं चल रहा, इसने इंडिकेशन दी चल रहा है। शेयर माई वेब पे ये कर ले। हाँ। अब आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स में चेंजिंग की है। फर्स्ट में देखें टाइटल पेजेस, और उसके जो टाइटल पेजेस थे उसको मैंने अलग पेज नंबर्स दिए हैं। टाइटल पेजेस 2 रखे थे मैंने, और उनको मैंने रोमन पेज नंबर दिया है। अब मैंने जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया है तो उसका मैंने हेडर यानी चेंज कर दिया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और उसको मैं चाह रहा था कि पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो। तो ये देखें जी पेज नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, और ये आगे आपका पेज नंबर 2 है, फिर आपका पेज नंबर 3 है, और ये आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर चल रहा था। और आगे देखें जी पेज नंबर चैप्टर 2 फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिखा रहा है। अब इसका
आप चाह रहे हैं कि इसका हेडर कोई और हो और वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि वो आपका रिजल्ट्स हो, तो यही बात है, जब वो लिंक टू प्रीवियस ऑन हो तो इसको ऑफ कर देना। ये अभी ऑफ नजर आ रहा है तो ऑफ रहना है, वरना फिर रिजल्ट सारों में शो हो जाएगा पिछले वाले में। तो ये रिजल्ट्स आपका आ जाएगा इस पे, इस चैप्टर पे। और आप ये 5 नंबर पेज है, आप चाहते हैं कि ये इसका मैंने कोई पेज नंबर और रखना है, तो इसको सिलेक्ट करके आप कोई पेज नंबर कर लें, फॉर्मेट पेज नंबर, इसको स्टार्ट कर लें एट 1 और इसमें आप चेंज कर लें उसको। आप चाह रहे हैं कि ABC होना चाहिए तो ABC कर लें, तो ओके कर लें, तो ये आपका A से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें रिजल्ट शो हो रहा है, ये देखें B पर रिजल्ट्स, C पर रिजल्ट्स, और ये सारे रिजल्ट्स हैं। ये आपको शुरू में मैं दिखाता हूँ कि हमने किया क्या है, इसको जरा रिवाइज भी कर लें। हमारा इसमें था कि हम एक डॉक्यूमेंट्स रखना चाह रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्स रखने का क्यों मसला होता है कि हम उसकी पेज नंबर डिफरेंट दरकार है, डिफरेंट चैप्टर्स हैं तो डिफरेंट पेज नंबर दरकार है, उनके डिफरेंट हेडर या फुटर दरकार है, तो उसको हम मैनेज नहीं कर पाते, तो हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ही बनाते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट्स के हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, जब उनको हम इकट्ठा करते हैं या उनका प्रिंट लेते हैं तो हमें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट समझ नहीं आती उसको किस तरह मैनेज करते हैं, लेकिन वो अपना बहुत सारा टाइम जो है इसी में ज़ाया करते हैं। रिसर्चर्स अगर उनका नहीं एक्सपोजर होता, ये छोटी सी एग्जांपल है, मैंने इधर एमफिल का अपना थीसिस भी लिखा, मुझे पता है कि उसमें यही स्टूडेंट्स जो आम थे वही हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता था। ये तो जब थीसिस में गए उधर फ्रांस में एक छोटा सा डोमेन, यानी एक एक्सरसाइज उन्होंने करवाई थीसिस से पहले कोर्स वर्क में, उसमें ये था कि आपने थीसिस किस तरह राइट अप करना है, उसके बाद उन्होंने टेम्पलेट देना है। तो मैंने देखा कि ये जो उन्होंने टिप्स बताई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी और उसको मैंने यूज़ किया। तो ये मैं डॉक्यूमेंट्स एक क्रिएट किया। अब आपका डॉक्यूमेंट 200 पेजेस का भी है तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करें टू सेपरेट डिफरेंट चैप्टर्स। अगर आपने विद इन द चैप्टर आपने डिफरेंट फिगर्स, डिफरेंट आपने टेबल्स रखने हैं तो उनको डिफरेंट पेजेस यानी पेज ब्रेक दें। तो अब उसमें मैंने बताया, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ हमने किया क्या है कि विद इन चैप्टर पेज ब्रेक्स दिए और चैप्टर्स को अलग करने के लिए सेक्शन ब्रेक दिए। हाँ, अगर आपको दरकार है कि विद इन चैप्टर आपने एक लैंडस्केप बनाना है टू सेपरेट डिफरेंट पोर्ट्रेट्स, तो आपको सेक्शन ब्रेक तब भी देनी पड़ेगी, पेज ब्रेक से काम नहीं चलेगा। सेक्शन ब्रेक से आप जो लैंडस्केप पेज है वो सेपरेट कर सकेंगे। हमने किया क्या कि डिफरेंट चैप्टर्स बनाए और उस चैप्टर्स को मिसाल के तौर पर पहला जो चैप्टर था वो हमारे टाइटल पेजेस थे, हमने उसको डिफरेंट हेडर दिया। तो ये आपके सामने है, इसके हम डिफरेंट पेज नंबर दिए, इसको हमने रोमन 1 2 दे दिए पेज। इसके बाद हमने किया क्या कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जो एक्चुअल चैप्टर है लिखने में, जो मैनेज करने में चैप्टर था वो हमने क्या दिया टाइटल पेजेस। जो एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हुआ राइटिंग में, वो फॉर एग्जांपल आपका इंट्रोडक्शन है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, तो हमने उसका हेडिंग भी चेंज किया हेडर, और हमने पेज नंबर भी डिफरेंट किया, उसको मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया। तो 1 2 3 उसके अपने हेडिंग है, और ये देखिए सेक्शन ब्रेक वो शो कर रहा है नेक्स्ट पेज जाने के लिए। तो सेक्शन ब्रेक का यूज करके हमने डिफरेंट चैप्टर्स को मैनेज किया। ये चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हमने हेडर भी जो डिफरेंट दिया रिजल्ट्स, तो इसको मैंने पेज नंबर भी डिफरेंट दे दिए, ए से स्टार्ट कर लिया। अगर आपको दरकार है तो इस तरह डॉक्यूमेंट्स को आप मैनेज कर सकते हैं, तो विद डिफरेंट पेज नंबर्स, विद डिफरेंट हेडर और फुटर। तो ये थोड़ा सा हमने एक्सरसाइज की है जी। अब हम देख लें क्वेश्चंस लिखते हैं। हाँ, उसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर देते हैं अगर कोई क्वेश्चंस है। जी, अब्दुल अहमद कुरैशी साहब, have you any question about Abdul Ahmad Qureshi साहब, have you any question about this session? Abdul
ताहा साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, तो आप बोलकर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर सकती हैं। क्वेश्चन है सर, इट्स ओके, वेरी इंफॉर्मेटिव था ये। और इसमें जो स्पेशली इन्होंने बताया ना कि ये पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक, अमूमन हम जो है इन दोनों को एक इकट्ठा ही ले लेते हैं, तो इस मामले में बड़े अच्छा और पहली दफा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। और अभी तक मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात छोड़ी नहीं इमरान साहब ने कि उसमें मैं कोई क्वेश्चन कर सकूं, तो इट्स ओके। इस जी चीज जी तौर पर कुछ अगर उनके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो बहरहाल मेरी तरफ से जी बहुत बहुत एप्रिसिएशन है कि आपने बहुत ब्रीफ और समराइज तरीके से बताया है और ऐसे बेसिक कंसेप्ट बताया जिनको अक्सर हम भूल जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जी। ये असल में ना ये हम समझते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और हमें इसकी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरू में बताया कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, अभी आप देखें टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो उसको मैनेज नहीं कर पाता। और उसमें मैंने देखा है कि वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्यों नहीं मैनेज कर पाता। फिर हमने छोटे लेवल से ट्रेनिंग स्टार्ट की, इन्होंने बड़ा अच्छा फोरम बनाया है कि हम ज़्यादा लोगों को एक्सेस कर सकते हैं और आप लोग ज़्यादा मुस्तफीद हो सकते हैं। बहरहाल ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सपीरियंस के साथ, और मैंने कोशिश किया है इसको सिंपल किया है ताकि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसको जब तक आप एक दफ़ा करेंगे नहीं तो आपके ये जहन में बैठेगा नहीं। तो अभी हर्डल्स उस वक्त आएंगी जब इसको आप यूज करेंगे। अपना कुछ पुराना डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप करने की कोशिश करें। ये कोई नेक्स्ट सेशन इनकी डिमांड आएगी तो हम उसको फिर मजीद एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, क्योंकि आप प्रॉब्लम बताएंगे तो हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर इंशाल्लाह उसको वन स्टेप अहेड जा सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सर, स्टूडेंट्स ने बताई हैं तो हमने उसको शेयर किया है कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। आपकी फीडबैक बहुत अच्छी थी क्योंकि वाकई ये प्रॉब्लम थे जिस वक्त हम स्पेशली अपने राइटअप के हवाले से बात करते हैं ना थीसिस के स्टूडेंट्स में भी, तो अक्सर हम डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ जो हमारा प्रिंट निकालने वाली आदमी होता है, तो हम उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसको जाके डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि ये 5 फाइलें 5 डिफरेंट चैप्टर है, इनको इकट्ठा कर दो, पेज नंबर लगा दो और वो कर दो। जिस वक्त वो फर्स्ट ड्राफ्ट निकलता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उलट होता है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स सिर्फ यही होती हैं कि जैसे ही वो डॉक्यूमेंट मर्ज करता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल तो अब ये जैसे आपने मैंने पहले भी बात की कि जो आपकी सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक दोनों की सेपरेटली आपने डिस्क्राइब किया ना, ये काफी हेल्पफुल होगा। तो नो बिल्कुल डाउट कि हम इस पे अब अपना काम करते हैं और जो फिर अगर फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ, बहुत शुक्रिया कि जो आपका अटेंड करने में। जी, मोहम्मद मुस्तफा कमर साहब, हैव यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सेशन? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम इंफॉर्मेटिव सलाम। था। उसमें एक क्वेरी है मेरी कि जो हेडर है उसको हम कैसे सेकंड ब्रेक से डिफरेंट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, तो वो काइंडली रिपीट कर सकते हैं आप मेरे लिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मैं आपको रिपीट करता हूँ, जरा आप फॉलो कीजिएगा। जी ये हमने कोई एक्सरसाइज की है जी अभी, मिसाल के तौर पर जो है ये डिफरेंट चैप्टर्स बने हैं जी आपके डॉक्यूमेंट्स में। जी डिफरेंट जी चैप्टर्स बिल्कुल जब आप बनाएंगे ना, हर चैप्टर के एंड पर आपने सेक्शन ब्रेक देनी, ये लाजमी ख्याल बिल्कुल। करें। अगर आपने सेक्शन जी ब्रेक नहीं दी ना तो आपका जो हेडर है वो सारे चैप्टर्स पे आ जाएगा। जी अगर आपने सेक्शन ब्रेक दे के चैप्टर्स अलहदा किए हैं तो उनका हेडर आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद भी एक इशू है जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, वो मैंने अभी बताया, लिंक टू प्रीवियस का जो है ना वो आपने खत्म करना है। मिसाल के तौर पर मैं अभी दोबारा किसी और डॉक्यूमेंट्स पे आपको कर देता हूँ। जी मिसाल के तौर पर ये एक आपका चैप्टर था जो इंट्रोडक्शन मैंने कह दिया, टाइटल पेजेस, इसके एंड पर आप सेक्शन ब्रेक दें। ठीक है जी, फॉलो करें ना। जी अच्छा, जी जी अब बिल्कुल। आपका ये जो चैप्टर है ये वाला, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, आपने इससे स्टार्ट करना है। आपने इसको कोई और हेडर देना है चैप्टर वन को, और शुरू के कोई और हेडर देना है। वो उसी वक्त मुमकिन होगा जब जी आपके इस चैप्टर को अलहदा करने के लिए सेक्शन ब्रेक है। सेक्शन ब्रेक देना। ठीक है जी। ठीक अब आपने बिल्कुल शुरू ठीक। में आप कोई डबल क्लिक करेंगे तो हेडर ऑन हो जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा। इस पे आप जी कोई भी अपना इसका लिख दें, टाइटल पेजेस। ठीक है जी। जी अब आपने जब ये लिखा ठीक। तो ये टाइटल पेजेस जो है आपका हेडर जो है आ जाएंगे टाइटल पेजेस। ओके। ठीक है जी। अब जो है ये इंट्रोडक्शन या इसके बाद जो है ये टाइटल पेजेस चल रहा है, लेकिन इंट्रोडक्शन में जब आएंगे ना, ये जो नेक्स्ट है ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको इसको बताता हूँ।
आप जो नेक्स्ट चैप्टर है जब उसमें सेक्शन ब्रेक देकर आप गए हैं, वहां पर उस चैप्टर का जो है जो आप लिखना चाहते हैं लिखें। और एक ये करना है, लिंक टू प्रीवियस को ऑफ कर देना है। अगर आपने लिंक टू प्रीवियस को ऑफ नहीं किया तो यहाँ पर टाइटल पेजेस ही आ जाएंगे। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे को आ जाएगा ऑप्शन लिंक टू प्रीवियस को। हाँ जी बिल्कुल, उसको आपने ऑफ कर देना है। जी ऑफ करके ठीक है आपने उस चैप्टर का नाम लिखना है, तो तभी वो चैप्टर का जो हेडर है वो लिखा जाएगा, अगर आपने लिंक टू प्रीवियस खत्म किया है। ठीक, थैंक यू, बस ये थोड़ी क्वेरी थी। चलें, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा- जी अब्दुल जब्बार काजी साहब, have you any question about this session? Yes, it's a good section, and I want to presentation copy. Can I get the presentation copy? Yes, you will receive a presentation copy and you will receive also you receive a video link of this session. Thank you. Abdul Malik Hashmi Saab, have you any question? Abdul Malik Hashmi Saab, have you any question? Abdullah Kamar Saab, have you any question about this session? Badal Murtaza Saab, have you any question? No, thank you. Thank you very much. Welcome. Dr. Rizwan Abid Saab, have you any question? Faisal Arshad Bhatt Saab, have you any question about this session? Yes, I have one question from the Imran Rashid sir. सवाल ये था मेरा कि मैं भी लास्ट टाइम वर्ड को बड़ा डीपली यूज किया जब मैंने अपना वो थीसिस मैंने अभी रिसेंटली सबमिट किया था, तो उसमें मैंने यूटिलाइज किया था। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि वर्ड जो है इसमें अगर हम कुछ एक्सेल की शीट्स वगैरह डालें तो वो यानी एक्सेल का कोई डाटा डालें तो वो डाटा आगे पीछे हो जाता है, यानी उसकी वो सॉर्टिंग वो नहीं रहती, स्प्लिटिंग नहीं रहती जो एग्जैक्टली वहाँ पे एक्सेल में होती है। तो उसका क्या तरीका है? क्योंकि वो समटाइम्स कुछ आपने फॉर्म्स और वो टेबल्स और ग्राफ्स ऐड करने होते हैं तो उसमें ये जरूरत पड़ती है आपको कि वर्ड में जब आप अपना थीसिस चेक करें। इमरान रशीद सर काइंडली अगर आप मेरे सवाल का जवाब दें। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। ये भी एक प्रॉब्लम आता है, जैसे आपको फेस हुआ तो आपने बताया। जब भी आपने ये जो खास तौर पे ये जो आप पीपीटी है, ये जो एक्सेल है या आपका जो पावर पॉइंट है, यहाँ से आप लेके जाएंगे ना तो आपको उसकी तब्दीली करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अब मैं थोड़ा सा, ये इशू को आपने छेड़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई इमेज यहाँ से लेके जाना है, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट, ये इमेज है, आपने जो इमेज है ये यहाँ क्रिएट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। ये आप इमेज जो है इसको करें, यहाँ से आप कॉपी करें और जब आपने इसको इंसर्ट करना है, पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो आपने पेस्ट डायरेक्ट नहीं करना, पेस्ट स्पेशल करना है, और इसमें आप पिक्चर एनहांस्ड मेटा फाइल करेंगे, तभी वो उस पेज में फिट बैठेगी। अगर आप डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो ये फिगर पेज से बाहर निकल जाएगी। और इसी तरह आप एडोब की फाइल से जो अगर इमेज उठाना चाह रहे हैं उसको स्नैपशॉट लें, ना कि सिलेक्ट करें। स्नैपशॉट करके आपने पिक्चर एनहांस्ड मेटा फाइल करना है, तो वो फिर आ जाएगी। हम ये एक्सेल की इधर से कोई ओपन करते हैं, इधर एक्सेल कहाँ पड़ा हुआ? ये एग्जांपल आपका एक्सेल की कोई है शीट या डेटा है, इसको आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें। इसको जब हम जाएंगे, आपको जो फॉन्ट दरकार है आप उसमें उसका टेबल क्रिएट कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे यहाँ आपने इंसर्ट करना है उसको, तो पेस्ट स्पेशल कर लें एक्सेल शीट ऑब्जेक्ट, तो ये आपकी एक्सेल शीट यहाँ आ गई। इसको चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट साइज को, यहाँ से अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी, बॉर्डर एंड शेडिंग जाकर आप इसका बॉर्डर्स जो है वो आप बना लें, ये इन्होंने सिलेक्ट कर लें, ठीक है, वो डार्क हो जाएंगे तो ये पिक्चर्स की शक्ल में होगी आपके। ये वो उसकी लाइन जो है वो आप डार्क कर सकते हैं, अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर फॉर्मेट ऑब्जेक्ट्स, तो उसका लेआउट सही कर सकते हैं, ठीक है जी। लेआउट विद इन द टेक्स्ट स्क्वायर फॉर्म, ये किस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो ये है इसका टेक्स्ट। वरना आप एक्सेल की जो है वो डायरेक्ट आप पहले टेबल क्रिएट करें इसी वर्ल्ड में, और वहां पर आप वहां से एक एक रो करके पेस्ट कर लें, या डायरेक्ट सारा पेस्ट कर लें, उस तरह का टेबल बना लें, तो वो उस तरह भी आपके वो सारी एक्सेल शीट जो है। लेकिन आप फिर वर्ल्ड से उसको मैनेज करेंगे, उसका फॉन्ट साइज, उसकी अलाइनमेंट, टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा वहीं से। ये जो यहाँ से आप नया टेबल, आप जैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे इंसर्ट से ये टेबल, ये आप यहाँ से आप कर लें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये इसी में आ गया जी। ये देखें, तो इसकी आप अलाइनमेंट जो है आप चाहते हैं कि दरमियान में आ जाए, तो उसकी जो है वो अलाइनमेंट कर ले, सेल अलाइनमेंट ये आ जाएगी, ठीक है जी। आप इस टेबल को चाहते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ा है, तो इसकी टेबल प्रॉपर्टीज में जाएं, ठीक है जी। उस टेबल प्रॉपर्टीज में जाकर आप टेबल्स को उसका साइज आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि वो इतना ही हो, 2 इंच रख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये है क्या? तो आपके वो देखें टेबल्स आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं उसको फॉन्ट साइज से, और इस तरह आप उसको दरमियान में रखना चाहते हैं दरमियान में रख लें, उसको ऊपर कोई आप कॉलम 1 कर लें, कॉलम 2 कर लें। तो यानी एक्सेल शीट से आप ये डायरेक्ट आप यहाँ से टॉप टेबल बनाएं और उसको यहाँ इधर पेस्ट करें, और उसकी आप उस जो टेबल है वर्ल्ड का, उसको आप टेबल प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हैं। GC University Faisalabad. Have you any question? No question. Thank you so much. Okay. जी हुमैरा शहबाज साहिबा, have you any question? Yes, Assalamualaikum. Thank you, Imran Rashid sir. I have a question. I have also just typed this question that is this knowledge applicable to Urdu documents as well? ये इसका मुझे अंदाजा नहीं, उर्दू का कभी नहीं हुआ, लेकिन उस पर हो जाना चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा, हम क्योंकि मसलन MS वर्ड पे हम अपना ड्राइव करते हैं, टेबल सब कुछ बन जाता है, लेकिन ये पेज नंबर सेटिंग और टेबल कंटेंट वाला इशू है, ये मेरे साथ है। मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया है पब्लिकेशन के लिए, और मैंने बहुत सारे फोल्डर्स में उसको अलग अलग से बनाया है। एक डॉक्यूमेंट में इसलिए नहीं बना पाई कि मैं उनको अलग नंबर्स नहीं कर सकती, ये कंटेंट में वो मैनुअली मैं उसको चेंज करती हूँ। मैंने ये हो जाना चाहिए, ये चूंकि यूजर फ्रेंडली है मैं तो आपसे मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बन जाएगा। आप हमें ये नोट सेंड करेंगे तो उसको फॉलो करके मैं अप्लाई करके देखूंगी ये आपको प्रेजेंटेशंस भाई भेजेंगे इधर, और आप इनसे इन टच रहें, तो मजीद क्वारीज ये जो आपके हर्डल्स हैं ये मजीद हमारी जो है इसमें एक्सपीरियंस में ऐड अप करेंगे कि हम मजीद इसको उर्दू में भी टेस्ट कर सकें। आपने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन मैंने उर्दू में क्योंकि उर्दू में किसी सबमिट कराते हैं पर्शियन लैंग्वेज में, तो खतना कुछ पर्शियन डिपार्टमेंट से हूँ, उर्दू चीज से ही मैं डॉक्यूमेंट टाइप करती हूँ
क्योंकि ये इशू मेरा हमेशा रहता है कि मैनुअली आई हैव टू हैंडल इट ये आपका नहीं इशू, और वो टेक्स हेल ऑफ ये सारे इंग्लिश वालों बहुत का ज्यादा भी टाइम इशू है। लेता बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे जो है। हमारे इंग्लिश में भी थीसिस लिखते हैं ना, उनका भी यही इशू है। जी जी और ये आपका इशू सॉल्व हो जाना चाहिए अगर आप इसको फॉलो करें, और प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगी, उसमें सारी वो लिखा हुआ है गाइडलाइन के किस तरह आपने ये हर एक का करना है। उसके बाद भी कोई इश्यूज होंगे तो आप इनसे इन टच रहें, तो हम उर्दू पे भी ये इसको मजीद हम रिफाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी खुरम शेख साहब, have you any question about this session? No, Sir Imran, this is a very informative workshop, and I have no question. I just wanted presentations if be given. Okay, I will provide you everything. फॉर एग्जाम्पल ये आपका फिगर 1 है, अगर आपने शो करना है कि ये उस चैप्टर में शो हो, यानी चैप्टर में अगर फर्स्ट चैप्टर में है तो 1.1 शो, सेकंड चैप्टर में है 2.1 शो, थर्ड चैप्टर में है तो 3.1 शो, फोर्थ चैप्टर में 4.1 शो। यही क्वेश्चन है ना? तो आप उसमें करेंगे क्या कि फॉर एग्जांपल ये आपने जब चैप्टर्स बना लिए, सेक्शन ब्रेक्स दी, हेडिंग फुटर जब हेडर उसका डिफाइन कर लिया, तो फिर जब आपने ये जो इंसर्ट कैप्शन है रेफरेंस में, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो आपने ये जो कैप्शन सॉरी जब ये करना है, यानी आपकी पहली फिगर ही है, ये मैं इनको शो करना है कि ये इसको आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल 1.1 है, तो ये अगर फर्स्ट चैप्टर में है तो इस तरह आप कर लें। वैसे जब आप ऑटोमेटिकली इसको करना शुरू करेंगे ना, तो वो उस चैप्टर में जाके वो आपको नंबर देगा। मैं अभी इसके कर देता हूँ आपको एक्सरसाइज, ये देखें, ये 1.1 आ गया जी। अगर आप चाहते हैं कि जी ये इस पे आप जब ये फॉर एग्जांपल आप फोर्थ, एक तो ये जब इंसर्ट कैप्शन है ना, ऑटोमेटिकली ये आपको गाइड करता है कि ये आपका, देखें ऑटोमेटिकली ये फिगर 1 इसने शो कर दिया क्योंकि जब पहली फिगर पे डालने लगे। तो इसी तरह जब आप नेक्स्ट, ये आप इसमें लेबलिंग कर सकते हैं, यानी नंबरिंग, आप इसमें नंबर सेलेक्ट कर लें, उसको फॉर्मेट कर लें। अगर आपने 1 2 का देना है, फिगर आपने रोमन देना, तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। चैप्टर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि 1.1 आए, या आप चाह रहे हैं कि ये फिगर 1 है तो इससे पहले आप यहाँ पर इसको ना चेंज करें। ये जब आप इसको इंसर्ट कर लेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये फिगर 1.1 रखना चाह रहे हैं, ओके करें, यहाँ पर आप उसको 4 कर लें। वो नेक्स्ट टाइम आपको जो है ना वो गाइड करता जाएगा। तो अब आप इसी तरह उस चैप्टर को थोड़ा सा मैनुअली इसमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये सेंस नहीं कर पाता कि आपको, वैसे वो गाइड तो करता है कि आप किस चैप्टर पे हैं, और सेक्शन ब्रेक से आपको ये देखें अपडेट करेंगे ना, तो ये हमने चूंकि उसका वो चेंज कर लिया फॉर्मेट, अब वो फिगर आपका शो ही नहीं कर रहा क्योंकि आपने ये इसको चेंज किया, ये वाला, इसका जो लिंक खत्म हो जाता है। ये इसको शो करना चाहिए यहाँ पर, इससे पहले 4.1 इधर कर लें, या इसको ऐसे ही इंसर्ट करें, और यहाँ पर इससे पहले ये 1 को ना चेंज करें, क्योंकि ये आपको, ये जो लिंक है ना इसका, ये उसके साथ। तो अब आप जब नेक्स्ट आएगा तो उससे पहले आप इसको उस चैप्टर को डिफाइन कर लें, या वो खुद ही आपको हाइपरलिंक कर लेगा। वरना ये करें कि जब आप इसमें फिगर्स को करें ना, तो इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसकी जो है इसके जो, आप समझ लें कि एक ऑप्शन है, आप इसमें ये कैप्शन कैसी होनी चाहिए, स्टाइल, तो इसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। वरना मैनुअली बड़ा आसान है कि बस अब आपने जब इस तरह इंसर्ट कर ली ना, उससे पहले वो चैप्टर लगा दें, तो ये चेंज नहीं होगा, फिर वो आप उसको अपडेट कर दें। ये थोड़ा सा ट्रिक है, खेलने से आया है इसको।
तो आप उसमें आप ये चैप्टर अपडेट करेंगे ना तो ये 4.1 आ जाएगा। Rafiq Khan Saab, have you any question? Rafiq Khan Saab, have you any question about this session? Muhammad Usman Saab, have you any question? No. Ji Muhammad Usman Saab, have you any question? Rafiq Khan Saab, have you any question? Rifat Mano Saiba, have you any question? No, thank you so much. It was very informative. Thanks a lot. Mr. Zishan Sheikh Saab, have you any question about this session? Thank you so much all the participants for your participation in our online workshop on informatics for writing manuscripts. So inshallah next workshop में मिलते हैं. See you again.